Good evening, everyone. I welcome you all to today's session, and I hope my voice is loud and clear to everyone. Please let me know in the chat box. And before starting the session, I would like to let you know, as we all are aware, that your communication with me is going to be throughout the webinar through chat box. And in the end, I'm going to take the question answer session. Okay, so I can understand. Yes. Thank you so much. I welcome everyone. Before starting this session, I would just like to know, like, what is the purpose of joining this session? Like, every would be having one on another purpose, like about knowing about their signatures, want to learn something new about the analysis, already aware. मतलब मैं शुरू करने से पहले ये जानना चाहती हूँ कितने लोग अवेयर है what is ग्राफोलॉजी और what is signature analysis all about, एंड आपका पर्पस क्या है इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने का। फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट मी हैव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट नर्मदा। एनीवन एल्स? Fast and quick little bit so that we'll not waste more time, and we'll go straight away to the starting with the session. So I am Purvi Anand. I welcome you all to the signature webinar. Okay, we are going to talk about a very interesting and powerful topic today: the traits and meanings in our signature. We are going to understand that to understand ourselves more accurately, I can say. Okay. So, first of all, I would like to sincerely thank each of you to come and give your valuable time to us and attend this session, be a part of this session. Your presence truly makes this workshop meaningful for me. So thank you so much. Before we begin, let me share a little about myself. I have been working in this field, in this handwriting and graphology for several years now. As many of you know, handwriting is like a science. Very few people are aware about this science. Okay, so starting this webinar or sharing you the concept about, let it be like there are many people who have already attended the handwriting styles with me. So I wanted to make aware to you all also, like in my groups I have parents, teachers, facilitators who help people to enhance their self, help them to grow in their life, correct? So by bringing this workshop in front of you was my only motto, where I can make you understand that what handwriting tells about our brain actually, because what we write is our thought process which works upon. Okay, so in this workshops we are going to understand, as you all are aware, and some new participants who have joined with me, like my basic motto is through handwriting or through signatures I want to make you understand that specifically when we write, it shows ourselves a mirror, like what are we actually about our mind, about our emotions and personality. Okay, over the years I have conducted many workshops such as handwriting improvement, calligraphy styles. In that I have made I have made teachers, I have trained kids also, and some of them have adopted this graphology, or let it be any of the course which I'm teaching as an trainer too. So my teaching approach is very simple. I keep it very simple because I want to reach to all the age groups, whether it be children, teachers, professionals. The only a thing the only thinking behind it is that it can be easily learned and applied, and the knowledge can be shared as much as possible. Yes, I have kept all my all the teachings which I teach in a very scientific manner. Like if I teach a handwriting class also, there also I have given my graphology touch. Okay, so my students come from like different backgrounds. Some want to improve their handwritings while other wish to explore this field as a profession. My own journey was quite simple. There was a time when I could
not clearly understand my own strength and weakness, where I step in into this graphology field, जहाँ पे मुझे मेरी क्षमता को, मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ को समझ कर आज मैं जो हूँ आपके सामने, मुझे उभर कर लेके आने में इसका बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में हेल्प रही है. So I can say that this analysis is an magic to myself too, because ये ऐसा टाइम होता है, जैसे लोग मुझे रिलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम कितनी बार हम यही नहीं जान पाते. आज हमारे पास फॉर एग्जांपल सब कुछ है. जैसे कुछ लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है तो हम फाइनेंशियली खुश नहीं है, वी आर लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई देर इज़ सो मच रिलेशनशिप इशूज. सो अलग 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 प्रॉब्लम्स को लेके लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में जड़ क्या है उसकी. सो इन दिस टुडे सेशन वी विल टुगेदर एक्सप्लोर how your signature tells your story, and how with small conscious changes, like छोटे छोटे changes भी अगर आप करेंगे ना, तो वो आपको मतलब अलाइन करके आपका जो बेस्ट वर्जन है वो निकालने में मैं आपकी आज हेल्प करूँगी. ओके, सो आई विल गो टू माई पीपीटी अगेन एंड आई विल शेयर अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट. Just give me a second. Yes. So, like, if we understand this basic trait, handwriting is an very important element, and it is connected with our mind and thought process. Okay, which help you to read your mind and others mind too. तो इसमें आप अपने माइंड के साथ साथ दूसरों का माइंड भी समझ सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको एक रोड मैप बता सकते हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या, मतलब कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, या वो खुद को समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो ईजिली आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा. सो वॉट वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू सिग्नेचर. बेसिकली आज की जो वर्कशॉप है वो सिग्नेचर से रिलेटेड रहेगी. ठीक है, ये सिग्नेचर एनालिसिस में हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं जैसे हमने किसी का सिग्नेचर देखा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ़ आई गिव अ बेसिक एग्जाम्पल, जब भी हम किसी का सिग्नेचर देखते हैं तो हम उनका नेम, उनका सर नेम या उनके इनिशियल से उनके बारे में जानते हैं. करेक्ट, and the way they write, so we can understand. Sometimes the signatures are readable and sometimes they are not. Okay, तो जिनके रीडेबल होते हैं हमें इजीली उनका नाम समझ में आ जाता है, उनका सरनेम समझ में आता है. सो वी कैन कनेक्ट टू द पर्सनैलिटी ईजिली. तो जब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे जो भी आप सिग्नेचर करते हो, जैसे मैंने आप सभी को बोला था, इट इज़ अ रिमाइंडर ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू, यू शुड हैव अ A4 शीट विथ यू. ओके, एंड यू शुड हैव अ पेंसिल पेन टू राइट whatever आई एम गोइंग टू से इन द क्लास. सो क्या होगा, जब आप अपना सिग्नेचर अपने सामने देखेंगे और जब मैं आपको ट्रेट समझाऊंगी तो आप इजीली उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, so if anybody is not having, you can just go and grab it as soon as possible. Okay, so we understand this all things like self understanding and personal growth. You will understand through this strength, weakness, emotion, and mindset of you or anyone around you. Okay, it also detects signs of depression, anxiety, stress, or low energy. Like you can understand this all if you are facing or if you see anyone else, तो ये अर्ली सिम्टम्स भी आप इजीली इनसे सिर्फ एक सिग्नेचर के माध्यम से समझ सकते हैं. ओके, इट ऑल्सो आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स लाइक लीडरशिप, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये ऑलरेडी क्वालिटी होती है, बट कुछ जैसे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं बोलूँगा तो कुछ हो जाएगा. सो इफ़ यू हैव दिस क्वालिटी एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, दिस particular trait will help you to come out of that and understand yourself better. ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल चूज प्रोफेशंस. मतलब प्रोफेशनली भी, जैसे आपको क्रिएटिव वे में जाना है, आपको करियर काउंसलिंग, गाइडेंस एंड रिक्रूटमेंट, जैसे कभी किसी को कुछ चेंज करना हो, जॉब चेंज करना हो, किसी को जो जॉब में वो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, स्विच करना है, या सैलरी पैकेज ज़्यादा चाहिए. तो when you understand like this particular thing is lacking in you, and if you solve it, like I had a consultation like day after tomorrow. So that particular person was into like
into a government job from so many years, but he was not understanding why he is not growing financially. So there was some traits which I made him understood. मैंने उनको बताया कि ये चीज़ है, आपको इसको ठीक करनी होगी, तो आप इजीली जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो गोल मैनिफेस्टेशन आपने किया है, वो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे. सो इट ऑल्सो रिवील्स ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस एंड कम्युनिकेशन स्टाइल. ये उन लोगों के लिए है जिनकी हमेशा कंप्लेन होती है, अरे यार मेरा जो पार्टनर है वो है ना ओपन माइंडेड ही नहीं है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है, उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है, हर चीज़ से इशू हो जाती है, या बॉस हो या कोई भी पर्सन हो जो आपको उस कंडीशन में नहीं समझ पा रहा है जिस कंडीशन में आप चाहते हैं. तो आप इजीली उनके अंदर ये ट्रेट देख सकते हैं कि ये पर्सन के अंदर वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको कैसे उस बंदे को उस चीज़ के लिए हेल्प करना है. ओके. इट ऑल्सो डिटेक्ट्स पोजेसिवनेस, एडेप्टेबिलिटी और एग्रेशन. कोई कोई लोग होते होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर बहुत एग्रेशन होता है. कोई लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग उसको नहीं कर पाते हैं. सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रॉब्लम ये है दैट वी आर नॉट अवेयर अबाउट आर मेंटल हेल्थ. लाइक नाउ आफ्टर करोना वी आर इन टू दैट, नहीं हमें अपना बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, हमें जितना चाहिए हम उसको खाने पीने को हम वी आर इन टू diet where we take juices, where we take food which are helping us to be a good health wise. Okay, उसके बाद योगा and those all things we are understanding. बट मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं समझना चाहता. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, कोरोना जितना ज़्यादा बीमारी नहीं थी उतना ज़्यादा फियर था दिमाग के अंदर कि कुछ हो गया तो, हमें कहीं से कोरोना लग गया तो. दैट फियर which we have and we are facing daily in our day to day life. Every person in 24 hours, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि किसी के अंदर कोई फियर ना हो. फियर सबके अंदर होता है, बट हाउ यू हैव टू ओवरकम एंड अंडरस्टैंड that what actually you are lagging out and how you can identify and bring out of it. बहुत सारे लोगों को ना मतलब लगता है यार नहीं इससे कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे हो सकता है. मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि एक सिग्नेचर से या हैंडराइटिंग एनालिसिस से हम एक पर्सन की डिजीजेस, उनको क्या इशू आने वाला है फ्यूचर में या प्रेजेंट में, अगर आप वो इशू भी फेस कर रहे होंगे, हम उतना तक उनको बता देते हैं. कैन यू इमेजिन? लाइक अ हैंडराइटिंग इज टेलिंग दिस ऑल अबाउट यू. It's not handwriting, it's your brain thoughts which you are writing in front of your काउंसलर, योर कंसल्टेंट. आप उनको जो शेयर कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं. वरना आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन लेती हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें उनके बारे में उनको बता देती हूँ कि वो खुद हैरान हो जाते हैं कि मैम आपने मतलब कैसे जान लिया. और मेरा बेसिक क्राइटेरिया होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ सिग्नेचर लिख के एनालाइज कर लेते हैं, सिग्नेचर्स चेंज करके लोगों को शेयर कर देते हैं. सॉरी, आई डू नॉट डू दैट. इफ आई एम डूइंग योर एनालिसिस, आई एम गोइंग टू गो इन टू core. I'm going to understand your handwriting in a full formation, like what you have written, what is your mindset, how is your thinking pattern, blah 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 blah. I will see all of it and then I will recommend you. एंड उसमें भी मैं एक सिग्नेचर आपको नहीं सजेस्ट करूंगी. आपके जो भी पर्पज से आप मेरे साथ जुड़े हो, आई विल एटलीस्ट सजेस्ट यू 4 to 5 signatures which you have to choose according to you and you have to apply in your like daily routine wherever you want to use it. आप उसको उस हिसाब से यूज कर सकते हैं. तो मेरा बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो इस हिसाब से होता है. Okay, so now moving forward a little bit, like we will understand how many types of signatures exist. ठीक है, तो हम इसमें टाइप्स भी समझेंगे कि आपका सिग्नेचर किस टाइप में आता है. आप अगर मैं बीच बीच में सजेशंस भी दूंगी कि आपको अपना सिग्नेचर ऐसे करना चाहिए, अगर ये है तो आपको ऐसे करना चाहिए, सो यू कैन नोट इट डाउन. ओके, what each signature reveals about its writer and how we can improve our signature to align it with आर एनर्जी, माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी. ओके, तो हम ये सब चीज़ें आज की क्लास में समझेंगे. सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड वील स्टार्ट विद द क्लास.
So a scientific signature, okay, your signature is your energy. When you share a signature to anyone or you write anywhere, जैसे अगर आज की मतलब हम हमारा जो mindset है being a Indian specially, that our signature should be very difficult, our signature should be very unique. और अगर मैं आपका सबसे बड़ा जो भ्रम है, जो मिथ है, इफ आई ब्रेक इट हियर टुडे बाय सेइंग दिस, दैट जितना कॉम्प्लिकेटेड या जितना डिफिकल्ट सिग्नेचर होगा उतनी आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होगी. मार्क माई वर्ड्स. जितने भी पर्सनालिटीज है जो फेमस है, जो आज एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उनके सिग्नेचर्स प्लीज जाके चेक कर लीजिए. इट इज़ वेरी इजी टू सर्च ऑन द गूगल. आई विल ऑल्सो शेयर योर विथ यू. उनके सिग्नेचर्स दे आर रिटन वेरी सिंपली. उनके सिग्नेचर्स कोई क्यों नहीं कॉपी कर सकता? वाई वी थिंक कि नहीं नहीं सिग्नेचर इतना टफ होना चाहिए कि कोई उसको कॉपी ना कर पाए, कोई इजीली उसको कर ना पाए. वाई दिस थॉट इज देयर? Your signatures should be as simple as you can, where it is readable. मतलब सिग्नेचर इतने इजीली रीडेबल होने चाहिए, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी को शो करता है. अगर आप कहीं खड़े हो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कहीं खड़े हो, आप अपने आप को सामने वाले को समझने नहीं देना चाहते. अगर वो आपको समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो कोई भी काम के लिए आप उसके साथ जुड़े हो, लेट इट बी फॉर जॉब पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, देन हाउ विल दैट पर्सन अंडरस्टैंड यू? As we use our signatures in all documents, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड, हम सब जगह अपने सिग्नेचर्स यूज करते हैं. बट अगर मैं बोलूँ कि आपका सिग्नेचर इल एलिजिबल सिग्नेचर है, वो साइंटिफिक सिग्नेचर है ही नहीं, तो आप कितने टाइम से एक रॉन्ग एनर्जी के साथ अपना सिग्नेचर यूज कर रहे हैं? आर यू ऑल विद दिस विथ मी? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. सो अंकिता जी, मैंने जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं आपको हेल्प कर पाई समझने में. Okay, so now we'll go for the next step where we are going to start the interpretation now. Okay, so here is a sample given to you. आपको A4 शीट लेनी है. जो सिग्नेचर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हो, ओके, द सिग्नेचर्स विच यू यूज इन योर डॉक्यूमेंट्स, इन योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप सिग्नेचर यूज करते हैं, वन सिग्नेचर यू हैव टू राइट 6 टाइम्स और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लिखना है. ओके, सेम सिग्नेचर जो आप करते हैं वो 6 बार आपको लिखना है अलग अलग जगह पे A4 शीट में. आई अगेन रिपीट दैट यू हैव टू राइट योर सिग्नेचर इन 6 times the same signature which you use in your documents. Okay, we'll start understanding that those traits because आप रोज उसे use करते हैं. So I'll give you few seconds and then we'll start with it. I hope you all have written it. The elements of improper signature style. अब हम एक एक चीज समझेंगे कि हमारे जो इतने ब्यूटीफुल वंडरफुल साइंस जो हम करते आ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में है. और ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद लोग इससे अवेयर भी होंगे. 90% ऑफ द सिग्नेचर्स आर नॉट साइंटिफिक सिग्नेचर्स. हम उनको साइंटिफिक सिग्नेचर्स काउंट करते ही नहीं हैं, बिकॉज वो ऐसी तरीके से बनाए जाते हैं that is not into the scientific approach. वो हम समझेंगे. Okay, so the first signature here you can see the scribble signature. ये most 80 to 85% के ये signatures होते हैं जो not at all readable होते हैं. The famous personality डोनाल्ड ट्रंप, उनके सिग्नेचर आप देख सकते हैं. इससे आपको क्या पता लगता है? लाइक can anyone tell me, by seeing this signature, if you want to understand about the personality, what you will understand? As I said that this is the most common signature. Okay, इनका ब्रेन हमेशा क्विक है, तो उनका हैंड वो पूरी जो चीज वो लिखना चाहते हैं, एटलीस्ट चाहे उनका नाम क्यों ना हो, वो उतना उसको हेल्प कर ही नहीं पाता. that they just rub they just rush to write their name as fast as possible. They are always in hurry. Okay, so like they want that thing to be done at any cost, so they just scribble it.
People with this type of signature are in a rush and careless with the details. They don't want to know about anyone, they don't want to understand anyone. This is one more signature which comes under scribble signature, where the initial is written, okay, and then the initials of the surname is written. Can you see it? तो आप सभी को अपने सिग्नेचर्स जो मैंने बोले थे लिखने के लिए, वो लिख के आपको एक एक ट्रेट जो मैं समझा रही हूँ, जिस कैटेगरी में आपका सिग्नेचर आएगा वो आपको समझना है, लिखना है। आज की क्लास के बाद मैं आप लोगों की इतनी भी हेल्प कर सकती हूँ जिन्होंने मेरी क्लास सिंसियरली अटेंड की है, जिन्होंने अपने ट्रेट्स लिखे हैं। यू कैन शेयर मी दोज ट्रेट्स एंड आई विल लेट यू नो आफ्टर द क्लास दैट आपने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो कितना सही है और उसमें और क्या आपको ऐड ऑन करना चाहिए। ओके, एंड दोज हु going to stay with me till the end of the session, I have one more bonus gift for you, so please stay till the end. Okay, जो मैंने अभी शेयर किया है, ये वाला जो पर्सन है, they are very shy personality, like they are shy in taking responsibilities, standing by their own decisions, because they always think कि इसका परिणाम क्या होगा, what would be the outcome of the decision if I take any, so they don't want to do or don't want to stand for themselves also. People do not connect with you as they sense in authenticity, मतलब इन पे कोई easily trust नहीं कर पाता है क्योंकि इनको कोई समझ नहीं पाता, इनका जो conscious और subconscious mind होता है वो कभी sync नहीं हो पाता। They are always into that dilemma, करूँ ना करूँ, हो क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब वो घबराहट रहती है कहीं ना कहीं हमेशा। The next signature is this signature where the initials are written, और अपना जो इनिशियल है लास्ट में इन्होंने उसको एक लाइन ड्रॉ कर दी है एम के बाद। देर आर 2 डॉट्स ऑल्सो इन द डाउन पार्ट, कैन यू सी? सो वील अंडरस्टैंड दिस ट्रेट्स नाउ। This person thinks that their time is more important than anyone else in the world. Okay, they are too busy to write their own name. उन्होंने अपना नाम लिख दिया है, उसके बाद इनिशियल के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी है। It sends out a message, my time is more important than yours. मतलब इनका हमेशा सेल्फ के ऊपर ज़्यादा होगी। अगर आपके आसपास कोई पर्सन भी है तो आपको हमेशा उनको ऊपर रखते हुए ही चलना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन साइकोलॉजी, दैट दिस पर्सन इज हैविंग दिस इशू, लाइक ही इज स्पेसिफिक विथ सम थिंग्स। तो आप उनको पहले आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए एंड देन यू कैन टेक अ बैक स्टेप, or else you can change their signature and help them to come out of this particular problem which they are facing. The next signature is this one. This also comes into scribble signature category. Scribble signature बहुत common है, इसलिए मैंने बहुत सारे examples उसके आपको share करने की कोशिश की है। इनका अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी हम read नहीं कर पा रहे। This is not readable at all. So what it tells us, the transparency level suffers, मतलब they are less transparent to anyone around them. उनका जो बोलने का तरीका होगा वो मतलब मिस रिप्रेजेंटिंग करना उनको अच्छा लगता होगा। वो ट्रुथ को हमेशा घुमा फिरा के किसी के सामने लाएंगे। दे डजेंट केयर वॉट एवर वी थिंक ऑफ देम एंड दे आर नॉट सीरियस ऑल इन देयर लाइफ। ओके, so this trait the particular person is having. So ये जो scribble signatures सारे हमने समझे हैं, what suggestions I can give to you all who are having the scribble signature. If you have this types of signature, write your full name. आपको कोशिश करनी है कि आप अपना पूरा नाम लिखें। okay, and second, that it will also add on patience in your life and you can be more focused personality. Okay, when your name would be clearly seen, it will help you to connect nicely. So this suggestions are for you to understand your signature traits and you can change it. Next is overwriting the surname. यहाँ पे नाम लिखा है, उनका सरनेम नीचे लिखा है और उसको ओवरराइट कर दिया है। सो ओवरराइटिंग द सरनेम, दिस कैटेगरी इज एड ऑन इनटू। ओके, एक और एग्जांपल है इसका, overwriting the surname. Again, this is one category where you have written your initial, the surname, and you have just circled that. So we'll understand this traits. Okay, they are always
in a anger feeling, like it let it be associated with father, mother और husband. अगर शादी हो गई है तो स्पाउस के साथ कोई ना कोई किसी चीज़ को लेके गुस्सा होगा. वो हमेशा ना अपने अंदर एक वूंड की तरह अपने आप को स्टैब करते रहते हैं. दे हैव ऑलवेज दैट पास्ट ट्रोमा, मेरे साथ ये हुआ था. वो हमेशा ना लिंग लाइक दे वांट टू लिंग अराउंड द थिंग्स एंड दे लाइक टू स्टे इन दियर पास्ट. सो मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि उनका इनिशियल लिख के उन्होंने अपना सरनेम लिखा है, लास्ट नेम. सो इट फील लाइक अ स्टैब वुंड इन द हार्ट एवरी टाइम यू राइट योर लास्ट नेम. ओके, सो वेर यू हैव रिटन योर इनिशियल एंड यू हैव रिटन योर लास्ट नेम, सो उनको कहीं ना कहीं फैमिली से किसी से कुछ ना कुछ शिकायत हमेशा रहती होगी. राइटिंग थ्रू द सरनेम मतलब पूरी तरह से सरनेम को ऐसे ऐसे स्क्रिबल करने की कोशिश की है. One more example is here. Here also the name is safe and the surname is cut. Can you see this? So this people are little bit secured about themselves. उनको उस priority में ये चाहिए कि like when they are slashing through their surname but do not, they are not touching their first name, what it indicates, resolve issue with the family, a sense of feeling superior better than the family. Okay, and being critical of the family मतलब उनको हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगेगी. माँ बाप को ले लेके हमेशा शिकायत होगी. अपने आस पास के लोगों के साथ कंपैरिजन होगा, दैट आई हैव दिस, दे डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ, दे वुड बी हैविंग any of the relationship issues with like their loved ones always. This is strike through the signature. This is an alarming signature which we do not recommend anyone to do this because यहाँ पे आप अपना खुद का नाम ही कट कर रहे हैं. मतलब आप खुद की आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हैं. They do not love themselves. Like if we can see the strike through in the signature. Okay, so once the signature is done, the cut is whole, which means they are not happy with what they are doing or with self too. वो हैप्पी नहीं है खुद के साथ. वो हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं. उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है. वो अपने आप को हमेशा बैक फुट पे रखते हैं. अगर बैठे बैठे भी होगे कहीं तो उनको यू नो उभर के सामने आना, उनको हमेशा एक झिझक होती है, एक शर्म होती है किसी चीज़ को लेके. तो उससे दे हैव टू कम आउट बिकॉज if you are slashing it, don't slash it, just write your name the way it is written. Okay, that will do it. तो वो पूरा आपका trait change कर देगा. Okay, one more is this which we do not allow. This is a signature where they have scribbled the whole surname themselves. I'm sorry to say that this signature is a Mumbai based girl. Okay, and she was into a class like 8th standard and she was not well prepared for her examination. She was just frightened to communicate to anyone, to school teacher, to parents, and this signature was found in her suicide note where she quit herself just for not getting prepare not getting preparation not getting a proper preparation done for her exam. When you can see the strike through, there are dots also in the signature and she have slashed and cut it. So there was no one to understand, to help her to come out with the trauma she was going into. Can you just understand that what a basic thing you are getting it? I'm not going to share anything here. आप मुझे प्लीज़ अपने सिग्नेचर चैट बॉक्स में मत शेयर कीजिए. यू इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन वेट एंड यू कैन शेयर मी आफ्टर द क्लास. ओके, बिकॉज यहाँ पे देखना आई एम नॉट एबल टू सी इट क्लियरली ऑल्सो एंड आई एम इन टू माई वेबिनार वेर आई एम हेल्पिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड द ट्रेड्स. तो आई वुड नॉट बी एबल टू हेल्प यू हियर. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट सिग्नेचर इज initial first name and then surname. M.K. Gandhi. We all know him. हम गांधी जी को गांधी जी के नाम से जानते हैं. वी डू नॉट कॉल हिम मोहनदास करमचंद गांधी. एम के वो लिखते थे हमेशा एम के गांधी. ओके, सो क्या नेम आया, दुनिया किस नाम से जानती है? गांधी जी के नाम से जानती है. देर इज वन मोर एग्जाम्पल हियर. एक और है वी एम रामदासम. रामदासम, we know the personality.
Okay, so what is there, they are a influence personality. Okay, they are influenced by their family, spouse. बहुत सारे लोग देखेंगे आप, अपनी मदर से इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने फादर से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो हमेशा ना ओवर शैडो करके चलते हैं। मतलब उनको यही नहीं पता होता कि कब वो जो जिनके साथ वो इन्फ्लुएंस है वो पर्सनालिटी बन जाते हैं। दे आर ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, मतलब कहीं से कुछ नॉलेज मिली तो ही दे गेट इन्फ्लुएंस। मतलब उनको वो जो पर्सन बोलता है कहीं कितनी बार उसकी बात सच होने लग जाती है। उनको लगता है कि लाइक वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग ये सच है। दे डोंट वांट टू गिव अ सेकेंड थॉट ऑल्सो टू इट। ये इशू होता है इनके साथ। ओके, सिग्नेचर विद द इनिशियल्स ऑफ द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, वेयर देर इज अ इनिशियल रिटन लाइक दिस एंड देन अ लाइन ड्रॉन। ओके, उसको मर्ज कर दिया है। एंड यू कैन सी दैट ये एक ट्रेड बन रहा है। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, सिग्नेचर विद द इनिशियल्स ऑफ फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम सर नेम। इनिशियल्स लिखा है एंड देन द सर नेम इज बीन रिटन। यू कैन सी दिस। So they are extremely private persons. Okay, they do not want to get open up easily because they have their self proud with them. This also reflects high level of independent strike, like they want to be become an independent personality. वो अपने आप को एकदम से किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहते। वो अपने आप को एक ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहाँ पे वो मतलब थोड़ा सा समझे। बिकॉज इफ ऑल द फर्स्ट लेटर आर कैपिटल, लाइक इधर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, दे शोकेस अ हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। like they have a good positive self esteem, but it shows in front of such people. The next is signature with a dot between the first name and the last name. Anyone can help me with this? We are on the fifth trait of the signature. कुछ तो आप लोग ने भी समझा होगा कि मैं किस पैटर्न में सिग्नेचर्स को समझा रही हूँ। सो वेयर द डॉट कम्स इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स पीरियड। उन्होंने अपने आप को एक पीरियड में बांध दिया है, अपने आप को एक टाइमलाइन दे दी है। किसी किसी चीज़ में वो अच्छी है बट किसी किसी चीज़ में वो उनको वीकर कर देता है। कोई सक्सेस नहीं आया, देर इज़ नथिंग टू अचीव इन लाइफ, और दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई सच। सबकी लाइफ अच्छी सेम सेम नहीं हो सकती ना, अच्छी नहीं हो सकती है। देर आर पीपल वे देर आर लाइक ड्रॉबैक्स इन लाइफ, जहाँ पे वो अचीवमेंट की उसमें नहीं जा पा रहे हैं, वो सक्सेस रेट को नहीं हासिल कर पा रहे। तो उन लोगों के लिए तो ये डॉट्स है ही नहीं, बिकॉज दे वुड नॉट गिव देम सेल्फ अ सेकेंड चांस। सो इफ एनी पर्सन इज हैविंग सच काइंड ऑफ डॉट्स, there is one more example of it here. So you have to remove the dots because it like puts you in a compartment. If you are giving a full stop, that means a period. Okay, people put a full stop in between this first and the surname. They have a different personality with the family, and they have like a different personality with somebody out of the family. They are separating their family from their personal life. वो हमेशा वो दो दो इमेज रख रख के एक टाइम पे आके वो खुद ही दे गेट फेड अप। द सेकेंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द नेम, मतलब अपने नाम के आगे खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया, तो इनको कोई नहीं रोक सकता इनके अलावा। ओके okay? इनको हमेशा आपने देखा होगा, दे वुड बी अ फैशन क्वीन, एज दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ प्रिंसेस डायना। तो वी नो ऑल हर, लाइक शी वॉज सो फैशनेबल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। एज यू कैन सी द डॉट, what it says that her words are फाइनल वर्ड, वी कैन नॉट आर्ग्यू विद दिस पर्सन। अगर ये कहीं आपकी ऑफिस लाइफ में या कहीं आप आसपास देखते हैं तो प्लीज़ उन पर्सन से उस टाइम पे आर्ग्यू मत कीजिएगा। ये जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया है, डॉट आफ्टर दी लाइन ड्रॉन, तो ये हमेशा उस डिलेमा में रहेंगे कि मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। उनका माइंडसेट वो होता है रूलर वाला, जहाँ पे वो रूलर टाइप समझते हैं कि मैंने एक संदेश दे दिया तो उसको सब लोग उसका पालन कीजिए, वो वाली चीज़ हो जाती है उनके साथ। सो इफ़ यू सी दिस पर्सनैलिटी अराउंड यू, जस्ट कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, द सजेशन विच आई कैन गिव यू, एंड देन यू कैन टॉक अगेन विद द सेम टॉपिक टू देम, तो वो बाद में समझ जाएंगे उस चीज़ को। ओके, एंड इफ यू वॉन्ट टू रिकमेंड समवन, यू कैन आस्क देम टू रिमूव दिस डॉट फ्रॉम देयर signature. Again, full stop at the end of the name. Can you see the same traits will go with them? Okay, so
जैसे मैंने बताया, इफ यू आर नेगोशिएटिंग विद पीपल एंड दे हैव गॉट फुल स्टॉप एट द एंड, लेट देम हैव द फाइनल से, यू आर नॉट गोइंग टू विन, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अज्यूम करें, एक एग्जाम्पल ले, दैट दे आर मैरिड एंड देयर पार्टनर हैज़ फुल स्टॉप जस्ट लाइक देम, और योर बिजनेस पार्टनर, देन द आर्ग्यूमेंट विल नेवर एंड. दो डॉट्स जहाँ पे आ गए सेम घर के अंदर, सेम बिजनेस के अंदर, उनका आर्ग्यूमेंट, उनका काम कभी फुलफिल मतलब नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता. किसी ना किसी को तो एक बैक फ्रंट लेना होगा. Long beginning stroke in the signature, from the down it is going up. Okay, so if we like divide it into four lines, अगर हम इसके ऊपर ड्रॉ कर ले, तो ये कहाँ गया, ये नीचे चला गया, लाइन से भी नीचे. तो इस ये इतना ज़्यादा अपने पास्ट में डूबा हुआ व्यक्ति है कि दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट. इनके पास बहुत ऑप्शंस आए होंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी लाइफ में कि आप कुछ कीजिए, आप अपने एंकर को, जैसे आप एक बोल सकते हैं कि जब बोट के लिए हम एक एंकर लगाते हैं ना, टू स्टॉप इट समवेयर, तो वो जो पानी के नीचे का जो एंकर है ना, वो इनकी लाइफ में इन्होंने खुद रखा हुआ है. वो जो चीज़ अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, चाहे उनका एंथुजियाज्म हो, चाहे उनकी वे ऑफ टेकिंग द थिंग्स or opportunities, they don't want to give their 100% in any work. काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जिंदगी चल रही है तो चल रही है, they do not bother about that. And if someone is pushing, they don't want to come out, वो आएंगे भी नहीं अगर उनका सिग्नेचर ऐसा होगा तो. they need to change this thing. What we understand, this is called extra long stroke. What we call it, extra long stroke. Okay, so which is below the baseline. What it indicates, leave a negative impression during the introductory meeting, such because इनका क्या लगेगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक बहुत मोटा आदमी है, ऐसे आराम से बैठा हुआ है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो अपना खा रहा है, अपनी चाय पी रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं. वो ऐसी पर्सनालिटी शो करता है सामने वाले को, तो कौन उसके साथ मेहनत करना चाहेगा? नो वन. मोनिका रॉय, इन दिस व्हाट इज मिसिंग, आई डॉट. एक छोटा सा डॉट आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स ला सकता है वो समझेंगे अब. सी, आई डॉट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स मेजर्स द लेवल ऑफ अटेंशन, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन के बारे में ये हमें हेल्प करता है. आई डॉट ना होना क्या बताता है कि यू आर अ डिस्ट्रैक्टेड पर्सनैलिटी, एब्सेंट माइंडेड. जहाँ बैठे होंगे वहाँ तो होंगे ही नहीं, कहीं और होंगे. दे आर लेस फोकस पर्सनैलिटीज. ओके, so if someone is having this issue, please start doing the dot on your I. Like I have my name, I also have I in my letter, so I always put the dot where I write my I, उसके ऊपर ही I put the dot. That is more फोकस. जैसे हम कुछ डेली रूटीन के काम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो ये जब आपका डॉट आ जाएगा, जो आप ओवर बर्डनड हो जाते हो, वो आपको सेल्फ लर्न करके इजीली चीज़ों को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. मेरे साथ भी होता था. आई यूज टू ऑल्सो फील, सोच सोच के, अरे इतना काम है, इतना काम है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, ए भगवान कौन करेगा, मुझे हिम्मत दे दे. लाइक दिस ऑल थॉट्स यूज टू कम इन टू माई माइंड. बट नाउ आई एम वेरी रिलैक्स. आई नो दैट दिस वर्क इज देयर, आई हैव टू डू. होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा. This thought, this fear I came over by understanding my handwriting traits and my signature. ये बहुत छोटी चीज है, बट आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए यही चीज हेल्प कर सकती है. यूज फर्स्ट लेटर इन द सिग्नेचर. द लेटर, द इनिशियल इज वेरी ह्यूज. कोई बताएगा मुझे इसके ट्रेट्स? एनीवन? लेट मी हैव द चैट बॉक्स. एनीवन, इससे आप क्या ट्रेड समझ पा रहे हैं? बेसिक, यस करेक्ट. सेल्फ प्रेज, करेक्ट. इमेजिनरी अचीवमेंट्स, यस वेरी गुड. सो इन दिस वी अंडरस्टैंड बेसिकली कि ये मतलब अपने आप को
एक्सेसिव प्राइड की तरह शो करना चाहता है, जैसे होता है ना कि हाँ किसी किसी के ऐसे शोल्डर दिखेंगे बात करते हुए ऐसे, अबाउट मी, अबाउट माई सेल्फ. सो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. In many cases, people with this type of signature don't even realize that they are hated by people around them because of their nature. वो इतने सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं कि आसपास के लोग जैसे ही वो आएंगे रूम के अंदर गॉसिप करना शुरू कर देते हैं. सिग्नेचर्स इन ऑल कैपिटल लेटर्स. दिस ऑल्सो मैनी ऑफ द पीपल डू इट. सिंपली फटाफट करने के लिए लोग कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं. says that such writers have a fake sense of मतलब superior बनने की आदत होती है. Someone with all capital handwriting. Vivek ji, you can rejoin it because I can see the screen clearly. आप एक बार rejoin कर लीजिए. I hope the screen is visible to everyone clearly. Okay, thank you, Narmada ji. Yeah. So this also shows insecurity because they have their own weaknesses. तो उसको hide करने के लिए वो ऐसी सब चीज़ें यूज़ करते हैं. ब्लोटेड लोअर जोन्स, ये वाला बेसिकली हम किसी की काउंसलिंग करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, वेल्थ prosperity के लिए. So we see this bloated lower zone always in their writings where they are blocking themselves to achieve the exact, like उनके अंदर बहुत कैलिबर है बट वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे. कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनकी मनी रिलेटेड इश्यूज हमेशा रहेंगे. मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क है बट बैंक में पैसा ही नहीं टिक पाता. अगर जॉब कर रहे हैं तो उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है जितना उनका कैलिबर है. तो दिस इज द पर्सन वेयर यू कैन सी द ब्लोटेड लोअर जोन विच वी कॉल. इनको हमेशा बैक स्टमक रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनके लेग में पेन होता होगा हमेशा. सो दिस वी कॉल इन्फ्लेटेड लोअर लूप इन लेटर वाई एंड जी. ये बेसिकली वाई और जी में समझा जाता है, वेयर देर इज दैट शोज दैट दे मतलब have marital issues also, let it be related money, sex or anything. Okay, this types of signatures with ballooned lower zone indicates unfulfilled marital cravings also. ये मतलब एक unsatisfied married life की तरफ इशारा करता है और इनके financial issue भी कहीं ना कहीं बहुत weak रहते होंगे. इफ योर सिग्नेचर हैज एन इन्फ्लेटेड लूप इन द लोअर जोन, रिड्यूस इट साइज. आपको इसकी साइज रिड्यूस करने की जरूरत है. स्क्रिबल्ड एट द एंड, पूरा सिग्नेचर सही से लिखा है बट एंड में स्क्रिबल कर दिया है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर सिग्नेचर. सो बैड फिनिशर, मतलब इनको कोई भी टास्क दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से करेंगे बट लास्ट में आके लथार्जिक हो जाएंगे. सो दे विल नॉट कंप्लीट देयर टास्क एट ऑल, cannot finish the given work. Okay, they will go on about doing a job with a great enthusiasm, but just when they are about to touch the finish line, like a rabbit and tortoise story, यहाँ पे वो होता है कि रैबिट सो रहा था और टॉर्टोराइज ने जीत ली रेस. तो यही यही है उदाहरण इस बंदे के लिए. इफ़ यू डोंट वांट टू know someone who give up easily, finish your signature in a proper manner. यहाँ पे भी ड्रॉप इन लास्ट लेटर, कैन यू सी देर इज अ ड्रॉप इन द लास्ट लेटर. ओके, so here we are going to understand the traits of this. So where the baseline there is no like अगर मतलब इनकी जो है वो ड्रॉप हो रहा है तो आप एक बेसलाइन के थ्रू उसको स्टेबल कर सकते हैं ताकि वो लेटर नीचे ना जाए. The drop in the signature also indicates that they are like they are having some serious emotional conflicts and they does not want to fight back anymore. मतलब वो कहीं ना कहीं क्विट करते आ रहे हैं. हम जब हैंड राइटिंग में देखते हैं, जैसे अगर ये सिग्नेचर मैं किसी का देखूंगी तो आई विल स्पेशली गो एंड आस्क दैट पर्सन टू राइट अ पेज फॉर मी. ओके, एंड देन आई विल अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है लेटर के अंदर, कहाँ हो रहा है, लाइक राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है. सो आई विल गो इन टू दैट कोर एंड अंडरस्टैंड दैट
बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके दे विल गो इनटू अ सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि उनको इमोशनल हेल्प कहीं से नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से वो ये जो यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है वो वहाँ उनको कर रहे हैं. इफ़ यू नो समवन हु हैज़ सच अ सिग्नेचर, so you have to go and help them to come out of this situation. Okay, tips for this last letter downfall is this types of signature with the dropping letters should be avoided. First, if you have this type of signature, do this like talk to someone close and seek प्रोफेशनल हेल्प. इन लोगों को हम मतलब कुछ भी चेंज करने से पहले प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने जी को ही कट कर दिया लाइन ड्रॉ करके. कट इन द लोअर जोन, वी कॉल दिस एज अ कट इन द लोअर जोन ट्रेट. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इन अ सिग्नेचर, प्राइमरली बिकॉज मोस्ट पीपल साइन इज इन अ हेजिटेंट वे. मतलब वो फटाफट करके उसको फिनिश करना चाहते हैं. ऑन द फेस ऑफ इट द सिग्नेचर लुक्स नॉर्मल बट इट इज not. They are not healthy at all. They are quite hard on themselves and they do not pardon themselves easily. मतलब वो अपने आप को second chance नहीं देना चाहते. They feel they are always wrong, less confident person. ओके, वो हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं लेस कॉन्फिडेंट समझते हैं. सो इफ एनी वन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ सिग्नेचर, लूज द अंडरलाइन. आप वो अंडरलाइन ही बनाना छोड़ दीजिए, तो वो जो आप कट कर रहे हैं लोअर जोन्स को वो हट जाएगा. एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स इन द सिग्नेचर. एमा लिखते वक्त एम तो दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ मिक्स हो गया है. कैन यू सी दिस? सो दिस ऑल्सो इज आस्क्ड टू बी अवॉइडेड. ओके, they tend to be lost in unnecessary and unimportant activities which will offer no returns on the amount of energy they are giving. टाइम एंड मनी स्पेंड बाय हिम, लाइक वो अपना टाइम भी दे देंगे, मनी भी स्पेंड कर देंगे, बट उनको फिर से कुछ नहीं मिल पाएगा. ओके, सो यू नीड टू अवॉइड दिस. इफ यू हैव दिस टाइप्स ऑफ सिग्नेचर, प्लीज चेंज इट. एटलीस्ट आप अपने लेटर्स को क्लियरली लिखिए. ट्रेस बैक सिग्नेचर, इसमें क्या किया, अपना नाम लिख दिया, उसके बाद हम ऐसे जाते हैं वो ऊपर से फिर से नीचे आ गया, मतलब अपने अपने आप ही उड़ान भर ली और अपने आप ही अपने आप को नीचे खींचता हुआ आ गया. सो वॉट दिस स्ट्रोक सेज, द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द सिग्नेचर्स गोज बैकवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, दे आर प्रैक्टिकली अलाइव इन दियर पास्ट. वो हमेशा अपने पास्ट में रहेंगे, उनको प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है. जो व्यक्ति हम बोलते हैं ना कि आता है घर में, खाना खाता है, टीवी देखता है, फिर सो जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं. वो एक मोनोटोनस जिंदगी जीना चाहता है. उठता है, काम करता है, फिर आता है, खाना खाता है, सो जाता है. नो फन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग दे वॉन्ट टू take. And like a example, if I will take a businessman and I met for a signature analysis several years ago, kept taking most of the time about how his last garment business was and how it failed despite the best efforts. जो वो कर रहा है उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हमेशा अपना बेस्ट जो पीछे जो उसने छोड़ दिया है उसके बारे में बात करेगा. सो अगर इस ऐसा किसी का है, इफ़ यू हैव अ सिमिलर सिग्नेचर, ड्रॉ एंड अंडरलाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जस्ट गेट रिड ऑफ इट टोटली. मतलब लाइन ड्रॉ करना भी छोड़ सकते हैं आप. ये वाला जो है हाउ आर यू, लाइक इसमें आपने अपने नाम को ही छोटा कर दिया. कैन यू सी इट? दे हैव वॉट, लो सेल्फ एस्टीम, underestimates themselves. As a result, a person with this type of signature avoids speaking like of his mind. Like वो अपने बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने बारे में कुछ शेयर नहीं करना चाहते किसी को भी, या कोई मीटिंग में भी कुछ शेयर करने को बोला जाए तो ही दे वुड नॉट बी दैट पर्सन, बिकॉज वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा पाते हैं अपने अंदर. बहुत सारे लोग हैं, होता बहुत कुछ है, बट दे डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंट लेवल टू कम अप एंड शेयर द थिंग्स. इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ सिग्नेचर, एनलार्ज इट अ बिट, कि आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखने की ज़रूरत है. ओके, दिस इज, आपने अपना नाम लिख लिया पर आपने पूरा उसको सर्कल में क्लोज कर दिया, तो ये मत कीजिए. ओके, ये वाला भी एक है ट्रेट जिसमें आपने इट इज़ नॉट रीडेबल एंड यू हैव सर्कल्ड योर होल इनिशियल ईयर. सो इफ़ यू आर डूइंग दिस, do not do it. Okay, if your signature is enclosed in a circle, it means you are built an invisible, often unnecessary but permanent wall of protection around you.
ओके, तो वो आपको चैलेंजेस लेने नहीं देगा, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनाएगा, प्रॉब्लम को ज़्यादा उजागर करेगा। ओके, मतलब वो आप जैसे बोलते हैं ना, पीपल विद दिस टाइप ऑफ सिग्नेचर हैव प्रॉब्लम मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज दे डू नॉट ओपन अप टू अदर्स easily. They are scared of getting hurt and emotional at emotional level, so they don't want to do friendship or deep friendship with anyone. Okay, so if anyone is having this type of signature, get rid of it. The result will really surprise you. ओके, सो दिस वर आर इन प्रॉपर सिग्नेचर जो हमने समझे। अब हम सिग्नेचर्स को चेंज करना सीखेंगे। ओके, सो इन माई नेक्स्ट पीपीटी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लाइक आप अपने आप को अलाइन करके, सिग्नेचर चेंज करके आप अपने आप को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने जो सिग्नेचर्स हमने समझे हैं उसको आप चेंज करेंगे। ओके, एंड वील अंडरस्टैंड। आई विल जस्ट ओपन माय नेक्स्ट पीपीटी फॉर यू टू explain you in more accurate manner. Okay, so your signature can be your biggest affirmation. Okay, your signature can be your conscious and subconscious affirmation। जब आप, जैसे बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि मैम आजकल सिग्नेचर कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ लिखना होता है, बट आपके दिमाग के अंदर तो होता है ना। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। आपको अपना नाम याद है, ठीक है। सिग्नेचर्स भी वी यूज मोस्टली आजकल करने नहीं पड़ते, डिजिटल लॉकर में है, दिमाग में तो है ना, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी है कि हाउ यू राइट योर सिग्नेचर। सो नेवरदलेस वो कभी ना कभी तो हार्म कर ही रहा है आपको विद रॉन्ग एनर्जी इफ योर सिग्नेचर आर नॉट परफेक्ट एंड नॉट साइंटिफिक। क्राफ्ट योर यूनिक सिग्नेचर, शेप योर आइडेंटिटी। तो हम इस स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, सो is everyone with me now to understand your signature traits? Let have some yes in the chat box. Come on. Yes. Thank you so much. इससे हमें भी लगता है कि आप सब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं। So the first signature I would like and suggest you avoid unnecessary strokes in the signature। ठीक है, अभी तक हमने अलग अलग ट्रेट समझे किसके क्या है, तो आपको पता लग गया होगा कि आपका सिग्नेचर ट्रेट किस कैटेगरी में है। ये चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, दैट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक दैट द सिग्नेचर विच आई हैव शेयर्ड आपकी वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो, दो तीन मिलाकर भी आपका सिग्नेचर अलग अलग ट्रेड्स के साथ, जैसे किसी का दो मिल रहे होंगे, किसी के तीन मिल रहे होंगे, किसी के उस ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो आपको उस हिसाब से अपनी चीज़ों को समझकर अपने सिग्नेचर को अभी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, समझिए इसको एंड प्रैक्टिस करके देखिए कि होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, एटलीस्ट जैसे अगर आप कुछ आज चेंज करते हैं तो उसको 15 days प्रैक्टिस कीजिए। ओके, यू कैन टेक अ 4 line बुक, यू कैन प्रैक्टिस देयर, यू कैन टेक अ A4 शीट, आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत आसानी से मिलेंगे। अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ अननेसेसरी स्ट्रोक्स। ओके, because a perfect signature it will help you to have your own introduction in a very fruitful manner। जब आप ये स्ट्रोक्स और जो अलग अलग फैंसी लेटर्स हम बनाते हैं, जब आप इसको सबको निकाल देंगे तो ये आपके बारे में लोगों को जानने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। डू नॉट लीव आउट लेटर्स, इसमें कैसे लेटर्स को लीव कर दिया गया है वो मत कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। ओके, why, if you want to create the perfect signature for your name, keep in mind that you should not leave out any letters of your name। आपको अपना सारा जो भी लेटर्स है उसको साथ में मिलकर लिखने की कोशिश करनी है। सम पीपल थिंक इट इज़ कूल टू स्क्रिबल, बट एज वी ऑल नो नाउ दैट वाई इट इज़ नॉट गुड, राइट। हम समझ सकते हैं ना कि मैंने अभी जैसे आपको स्क्रिबल सिग्नेचर्स के बारे में इतना कुछ बताया, सो यू आर ऑल अवेयर दैट वाई डू नॉट यू डोंट हैव टू स्क्रिबल। लाइक यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज सिग्नेचर एग्जाम्पल वी हैव गिवन, यूज कैपिटल लेटर। ही इज नोन टू बैलेंस हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ। अमिताभ बच्चन अपने फादर मदर के बारे में हमेशा शेयर करते हैं रिस्पेक्टफुली। आज उनको
हर कोई एक रिस्पेक्ट के मायने से देखता है. सो इट इज़ अबाउट हिज बैलेंस सिग्नेचर विच ही इज़ यूजिंग फॉर सो लॉन्ग. The first letter in your signature should always be written in capital. Make sure that the first letter of your name, surname is never written in lower case. आपका जो इनिशियल होता है, अगर आप सरनेम भी साथ में लिखते हैं तो उसका इनिशियल भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको. एक छोटा एक बड़ा नहीं लिखना है. आप अपना इनिशियल थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट दोनों कैपिटल लेटर्स में आप लिखिए. ठीक है. स्मॉल केस फर्स्ट लेटर इन अ सिग्नेचर कुड कॉज अ लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट्स वाई वी डू नॉट रिकमेंडेड टू एनी वन. एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, मतलब आपको सब कुछ करके भी ऐसा लगेगा कि आप कहीं हारे हुए हैं. ओके. सो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कैपिटल्स: रेज योर सेल्फ एस्टीम. ठीक है, इससे आपका एक सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा. हेल्प्स यू वर्क कॉन्फिडेंटली, कीप यू स्टेबल इन एडवर्सिटीज. मुश्किल समय में ये आपको उभर के बाहर निकलने में हेल्प करेगा. पार्टली रीडेबल सिग्नेचर, आप सिंपल रख सकते हैं अपना सिग्नेचर. ठीक है. अब जैसे आर आप बेंड होता हुआ दिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनकी जो फिजिकल बॉडी थी वो भी एक टाइम के बाद बेंड हो गई थी. कैन यू अंडरस्टैंड? एक छोटा सा लेटर is telling about the physics also of the person. Can you relate it with me here? So इनका जो सिग्नेचर है ये सिंपल काइंड पर्सन थे बिकॉज इनका सिग्नेचर इजीली रीडेबल हो रहा है. इनको इजीली कोई भी टच कर सकता था. इनको इजीली कोई भी मतलब इनसे बात कर सकता था. ही डिडंट हैड दैट प्राइड बिकॉज ऑफ हिज सिग्नेचर. हियर यू कैन सी इट. ओके. एंड अगर डॉट की यहाँ पे बात करें तो ही हैड मस्ट हैव बैलेंस्ड हिज प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ वेरी नाइसली बिकॉज इन्होंने अपने जो लाइक अपना नाम, अपना फादर का नाम, उसके बाद डॉट करके ही हैज़ रिटन हिज सरनेम. सो ही हैड अ गुड बैलेंस बिटवीन हिज प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ वन मोर, कीप इट सिंपल. लाइक इन्होंने अपना नाम लिखा है, इनिशियल एंड देन अ सरनेम. One more example is here. Here also stroke is coming again inside, कहीं बाहर या इधर उधर वो नहीं जा रहा है. Okay, you can see it and you can try doing it here in the class. People try to make their signature stylish with using unnecessary strokes. They what it cause them. It like do not help them to grow in a personal or a professional level very nicely. While keeping it simple, what benefits you will get it? It will help you to stay grounded, stop you from over promising. It projects your humble nature to other. बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें कोई समझ नहीं पा रहा, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. और जहाँ पे पार्टली रीडेबल सिग्नेचर्स की बात आती है वो आपको क्लियर थॉट्स रखने में हेल्प करता है. हेल्प टू कनेक्ट मोर विद द पीपल. कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है. ठीक है. जैसे मैंने बताया था, अ स्ट्रेट सिग्नेचर कैन इंडिकेट बैलेंस एंड कंट्रोल. आप अपना माइंड, अपनी जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो आपका तालमेल होता है उसको बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं. अगर वो बैलेंस हो गया देन देर इज़ नो टफ जॉब एनी वेयर. बहुत ईजिली सब कुछ हो जाएगा, बहुत ईजिली सब कुछ मैनेज हो जाएगा. इनके अंदर हमेशा ऑनेस्टी देखी गई है. दे आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन. Full written name can help you to finish your task and opportunities on time. So you can write your name in a full way. Degree rule, 45-degree rule, where the signatures are written in this way. Dots भी अंदर कर दिए. अंबेडकर जी का सिग्नेचर है, यू कैन सी. एंड वी ऑल नो दैट अप हीलिंग डायरेक्शन ही वॉज ऑलवेज एम्बिशियस पर्सन, जो हमेशा अपने बारे में, दूसरों के बारे में सोचते थे, सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करते थे. ओके. सो अपवर्ड स्लोप क्या हेल्प करता है? सेंस ऑफ एम्बिशन, अ टेंडेंसी टू लुक टूवर्ड्स द फ्यूचर. The more slanted, the more ambitious the person would be. Okay. If you see that you are not able to cope up in the career, आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, especially for the students 10th 12th, if you are having some issue, anxiety issue, nervousness issue for the exams, try lifting up your signature and writing it. Okay. एग्जाम के पहले भी एग्जामिनेशन पेपर आया,
एक पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर इस स्टाइल में लिख दीजिए। टी का मैं हमेशा बोलती हूँ, टी लिखिए लूप करके, जहाँ पे लूप बने एल फॉर्मेशन में, और टी बार सबसे ऊपर कीजिए। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल विद इन 2 सेकेंड्स अप कर देगा। ट्राई करके देखिए। आई शेयर दिस फॉर माई पर्सन्स हु कम फॉर द जॉब इंटरव्यूज। उनको कुछ दिक्कत आती है, वो नहीं कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हैं, जैसे ही वो प्रैक्टिस करते हैं, बाहर बैठे बैठे टी लिखते हैं, मतलब लिखते जाते हैं, पेपर पे लिखते जाते हैं, टी बार अलाइन करते जाते हैं, दे हैव अ एक्सट्रीम अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट लेवल। बोलने की बात नहीं, यू कैन ट्राई डू इट एंड देन यू कैन सी द चेंजेस। The underline signature, what it helps you, Devanand, we all know about him. Okay, so this one more signature is there, Sachin Tendulkar, where he has underlined his name and given a secure, that umbrella type. One more is there, here is one signature, normal signature है जिसमें उन्होंने underline किया है. Again one more signature. I'm just giving you a variety of signatures to see and practice it. Okay, यहाँ पे टी बार देखिए, वेयर इज द टी बार, हाई, तो सोचिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा। थिंक where would be the confidence level of the person gone. If you underline your signature, it shows you are experiencing self confidence and ability to cope up with daily challenges. A simple underline indicates healthy self confidence. It indicates that क्या होता है ना, आप खड़े हो और आपके नीचे किसी ने एक स्टेज दे दिया, स्टेज पे जाने के बाद अपने आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। सो दिस इज अ स्टेज फॉर यू। ओके, सो एक ही लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे नहीं कि आप दो दो तीन तीन चार चार लाइनें ड्रॉ करिए। नो, ओनली वन लाइन इज नीडेड एंड दैट शुड ऑल्सो गो फ्रॉम लाइक लाइक दिस। पीछे से आगे नहीं आना है, आगे से पीछे जाना है, जहाँ से आपने अपनी नाम लिखने की शुरुआत की है वहाँ से। सो दे आर विलिंग टू टेक चांस इन द लाइफ, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स रेदर देन ब्लेमिंग अदर पीपल। ओके, सो ये हमेशा अपने ऊपर वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। टू और मोर अंडरलाइन शो दैट द राइटर इज possessed by feeling of imperfections. You should underline if you want, but it is not mandatory. Okay, so आपका जब आप अंडरलाइन करेंगे तो क्या क्या हेल्प करेगा, here are some suggestions for you. It will boost your self esteem, self leadership, making a statement. अगर कहीं आपको कुछ प्रोजेक्शन करना है, कुछ अपने आप बारे में किसी को जानकारी देनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक अंडरलाइन के माध्यम से हेल्प करेगा एक अलग वे में आपके अपने आप को प्रेजेंट करने में। द साइज ऑफ द सिग्नेचर ऑल्सो मैटर्स, कि आपने किस साइज में अपने लेटर्स लिखे हैं, इनिशियल कैसे लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे हैं। सो द साइज ऑल्सो शुड बी इन अ करेक्ट फॉर्म। ओके, जो आपका इनिशियल है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आपके जो रेस्ट लेटर्स है उनसे। ऐसा नहीं हो कि सब एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। ओके, यू कैन सी वन मोर करेक्ट साइज ऑफ द सिग्नेचर। आर यू गेटिंग मी? आर यू विथ मी ऑन दिस? So what will help, like when you will have a signature, like when you will create a signature of correct size, the size of the signature should not be too big or too small. Okay, इसके लिए आप 4 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बैलेंस, जैसे कैपिटल 3 लाइन्स में आएगा, जो दूसरे लेटर्स है वो 2 लाइन्स में आएंगे, तो वो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपको वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ओके, when you create a signature, it is necessary to maintain a balance between the size of the handwriting and your signature. It means your signature should not be much bigger or smaller than your handwriting. इससे क्या बेनिफिट होगा? Shows don't possess to the people, okay, or please others, give courage to stand your ground, help you speak fearlessly. Like आपको लगता है कि मैं कहीं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, तो वो आपको fearlessly speak करने में help कर सकता है। Big size signature, your Priyanka Chopra, the P is big. Okay,
as we know about her that now she is a successful person. ये हमेशा पॉजिटिव ईगो प्रेजेंट करता है एक व्यक्ति का, इम्प्रूव सेल्फ स्टीम। ओके, जिसके अंदर बहुत डरा हुआ पर्सन होगा, डरपोक होगा, तो उनके लिए ये सिग्नेचर हम सजेस्ट करते हैं। दे ऑलवेज फील दैट दे हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से द वर्ल्ड। मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ योर सिग्नेचर लार्ज देन इट करेंटली इज। ओके, तो आपको मैनकाइंड के लिए अगर कुछ करना है, कुछ शेयर करना है, तो इजीली आप उसको बैलेंस आउट करके शेयर कर सकते हैं। सिग्नेचर इन कर्सिव, बहुत सारे लोगों के पहले जैसे कर्सिव ज़्यादा यूज़ होती थी स्कूल्स में, तो लोगों की कर्सिव राइटिंग होती थी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट कनेक्टेड पर्सनस। आजकल राइटिंग प्रिंट और अदर अदर स्क्रिप्ट्स में होने लग गई है, सो देर you see different traits nowadays. Steve Jobs, okay, so this is also a cursive writing signature where he is initials also in a small case, you can see. Okay, इसने सब कुछ cursive में किया है। Cursive writing is not merely a form of communication, it unlocks potential for abstract thinking। मतलब they always would be a out of box person, allows the human brain to compat like have a compartment and expand memory capacity. It develops individual expressions easily. You can check the signature of any famous or successful person, it will always be in cursive. So when you create a signature, keep that in mind कि ज़रूरी नहीं है कि आप कर्सिव राइटिंग में ही कीजिए, बट ऐसा माना गया है जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनके मोस्ट ऑफ द लेटर्स कनेक्टेड ही होंगे। कर्सिव इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, एक्सपांड मेमोरी कैपेसिटी, अनलॉक्स पोटेंशियल फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ ट्रेट इन योर सिग्नेचर्स देन यू कैन जस्ट गो एंड ग्रैब इट आउट। आप कर्सिव में भी अपने सिग्नेचर्स लिख सकते हैं। ये जो मैं कहने जा रही हूँ इसके बाद, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड प्लीज़ डू नॉट टेक इट एंड any negative point of view, because I am into a field where I want and have to guide people. Say no to copying signature। आजकल रील्स देखते हैं आप, वीडियोस देखते हैं जहाँ पे सिग्नेचर्स अलग अलग टाइप के आपको शेयर किए जाते हैं विदाउट कंसल्टेशंस। आप सिग्नेचर्स खुद ट्राई करके अपने लाइफ में अप्लाई की कर रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए। नकल भी अक्ल से करनी होती है, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी। बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने अपने आप ही वीडियोस देख के अपने सिग्नेचर्स को चेंज कर दिया, और आपको पता भी नहीं है कि वो शॉर्ट में उन्होंने किस वजह से उस सिग्नेचर को लिखा था, स्टाइलिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, या किस वजह से। जब तक आप कोई चीज़ को समझेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल फैक्ट। लाइक अभी भी आपने कुछ चीज़ें समझी है, देन ऑल्सो आई टोल्ड यू आफ्टर द क्लास प्लीज शेयर विथ मी द ट्रेट्स यू हैव रिटन फॉर योर ओन सेल्फ, so that I can see and just give you a overview about what you have done. Is it correct for you or not? This is the best I can give you from me. उसके बाद you have to take the decision that what you have to do. Am I correct? If you can tell me if I am wrong anywhere. तो आप अगर नकल भी कर रहे हैं तो अक्ल से कीजिए, ये कोई ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। सो द बेसिक गाइडलाइन इज लाइक क्लियर लेजिबिलिटी होनी चाहिए सिग्नेचर्स के अंदर। यू कैन नोट इट डाउन। कंसिस्टेंसी, लाइक अ कंसिस्टेंट सिग्नेचर इंडिकेट स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लाइक अगर आप कोई सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली आप कीजिए, तभी आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अ सिग्नेचर विथ स्ट्रॉन्ग बोल्ड stroke suggests confidence and assertiveness, so it will help you to increase your confidence level. A well balanced signature indicates a harmonious balance between the person and personal and professional life. और अगर simplified होगा आपका signature, simplicity के साथ, a simple and uncomplicated signature suggests a straightforward and unassuming personality. Okay. So here was my session for you all. If you want a powerful and a perfect signature for personal and professional growth, so you can contact me on this number. I will help you and I will guide you how you can change your signature. What is the science behind your writing and your signature, will try to understand.
एंड आई ऑलवेज डू वन ऑन वन काउंसलिंग, लाइक मैं पहले आपका हैंड राइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, वन ऑन वन सेशन होता है, आई कंडक्ट द सेशंस ऑन जूम. Okay, and after conducting the session I give you some therapy which we call graphotherapy, where you have to practice some letter formations and other things, and I also give you samples of your signature where you have to practice on the various things where I have asked you to do so. ओके उसके बाद फिर से मेरा एक फॉलो अप सेशन होता है जहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो भी मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था वो आप कितने अच्छे से कर पाए. एंड वेन एवर यू नीड अगेन हेल्प फ्रॉम मी आई एम देयर. ऐसा नहीं कि एक बार कंसल्टेशन हो गई तो वो हो गया, ख़त्म हो गया. नो, आई एम देयर टू हेल्प यू. ओके, ईयर दैट आज जैसे ईयर एंडिंग है, वी आर गोइंग टू गो इन टू अ न्यू ईयर. सो यहाँ पे हमने एक ऑफर रखा है वेयर आई विल डू 1+1. लाइक अगर आप एक सिग्नेचर एनालिसिस के लिए रजिस्टर करते हैं तो एक और सिग्नेचर आपके लिए आई विल डू, उसमें एड ऑन हो जाएगा. दैट वुड बी लाइक वन ऑन वन, एक सिग्नेचर का आप पे करेंगे एंड वन वुड बी done free of cost for you. In that also I will do the whole handwriting analysis, signature analysis, and a counseling session would be there for you. Okay, so this offer is valid only for this December end week. Okay, and I am also coming up with my workshop, a whole graphology course where I am going to teach you from basic to advanced. इसमें हम बेसिक से समझेंगे कि मतलब हैंड राइटिंग क्या होती है, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे. ओके, एंड उसके अलावा यू विल लाइक हैव अ होल हैंड राइटिंग एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में we are going to understand. And then there is going to be a whole course for 6 days. The timings are I'll just share the PPT again, just give me a second. So here is the timings are going to be in evening. If I will give you a small example, like we'll understand what is graphology, handwriting, as we all know that it is a brain writing, जहाँ पे हम different perspective समझेंगे, like आप like signs of happy person in writing, like basic से हम समझेंगे. अगर किसका upward slant है तो उसके बारे में क्या है. अगर मैं आपको एक छोटा सा example दूँ, blank paper of A4 size represents your 24 hours journey. Upper side, left side, right side, lower side. Like base from basic, I'm going to understand what is margin lines, what is left margin call, what is right margin call. आपका अपर जो मार्जिन है वो क्या कहता है आपके बारे में, लोअर मार्जिन क्या कहता है. तो हम बेसिक से सारी चीज़ों को समझेंगे. अगर हम ये समझे कि जैसे 4 लाइन्स के हिसाब से अगर हम समझे तो ये टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, व्हाट इज़ असेंडर लाइन, कैपिटल लाइन मीनिंग. So this all things we are going to understand in this particular course. Okay, so for this also you can get connected to me on this number and I can share with the more details for this to you all. Okay, so इसमें पूरा handwriting analysis होगा, signature analysis होगा. In this also I'm going to do your whole analysis, like one on one. जिसमें I will टेल यू अबाउट योर ट्रेड्स ऑल्सो. लाइक इस ये कोर्स के अलावा मैं आपका एनालिसिस भी करूँगी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर का, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. ओके, एंड अगर अलग से सिर्फ आपको एनालिसिस करवाना है तो उसके बारे में मैंने ऊपर आपको जानकारी दे दी है. सो ये दोनों चीज़ें अवेल है. ये कोर्स शुरू हो रहा है 15 से 20 तारीख तक. 15th January द कोर्स स्टार्टिंग टिल 20th January. In this we are going to give you lifetime free repetition. Okay, if you want to understand and rejoin the session again and again, you can come
You will get lifetime free recordings also. You will get theory part like PDFs and certification and everything you're going to get in course. इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो उसके बाद अगर आप किसी की कंसल्टेशन करते हैं, किसी के लिए कोर्स कंडक्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर आपको हमारी सहायता चाहिए, यू नीड हेल्प फ्रॉम आवर साइड, देन वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। लाइक आफ्टर कोर्स सर्विसेज ऑल्सो देयर। ऐसा नहीं है कि कोर्स ख़त्म हो गया तो मतलब टाटा बाय बाय, नो नो, नथिंग लाइक दैट। आई एम देयर टू हेल्प you. That's why I have kept this like basic to advanced everything I'm going to share with you. So thank you so much everyone to attend this session, and I was pleased to help you to understand. I hope that मैं आपके ट्रेड समझ के आप क्या है आपका बेस्ट वर्जन निकालने में मैंने आपकी सहायता की होगी। ओके, एंड अ बोनस ऑफर विच आई सेड दैट आई वुड हेल्प यू। सो आप मुझे अपनी सिग्नेचर शेयर कीजिए, आपने जो ट्रेड्स समझी आप वो भी शेयर कीजिए। मैं आपको एक ट्रेड आपका बताऊंगी जो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये चेंज कीजिए तो आपकी लाइफ में ये इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर अपना एनालिसिस करवाना हो तो आप कभी भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप रेज योर हैंड का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयरिंग ईयर, एंड इफ़ यू वांट टू गिव फीडबैक फॉर द कोर्स, लाइक आपको वेबिनार कैसा लगा, आप उसके लिए भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। यू कैन ऑन योर वीडियो एंड लेट अस नो अबाउट। Narmada ji, you can unmute and give us a feedback, ma'am. And if you have question, then you can also let me know that. Yes, Narmada ji. Hello, ma'am. How are Yeah, you? I'm good. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, it was So really very informative and very inspiring. मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर किसी को जानना है तो उनको सिग्नेचर के थ्रू हम जान सकते हैं। yes, वो ma'am. और बहुत अच्छा लगा। हैंड हाँ, राइटिंग भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। लाइक सिग्नेचर्स के साथ साथ हैंड राइटिंग एनालिसिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पर्सन मोर इन अ डीपर वे। yeah, आई होप कि आई वुड आप जैसे मैंने जो भी ट्रेड समझा, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल कैरी फॉरवर्ड इट टू sure. योर सेल्फ टू like change it. Thank you so much for joining this session, ma'am. Yes, thank you, uh, ma'am. Satakshi Gupta, unmute yourself and please share your feedback with us. Sunil Saxena, जो भी रेज योर हैंड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। स्वीटी वैष्णवी, you can unmute yourself and you can share your feedback. Sharon Bhalla, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी। Hello. Yes, ma'am. The session was really informative. Just want to know that जो ऑफर है 1+1 वाला उसका फी स्ट्रक्चर क्या है एंड द अदर वन जो एक कोर्स है उसका। जो हमारा कंसल्टेशन है जिसमें 1-on-1 आपको हैंड राइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस हम करके देंगे, उसके 1100 चार्जेस है। और जो कोर्स है, कोर्स की फ़ीस 6000 रुपीज़ है। बट अगर आप अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर कोर्स इन विच वी आर गोइंग टू डू योर हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस ऑल्सो, उसकी फ़ीस है फॉर लाइक दिस वीकेंड 3600 में आप रजिस्टर कर सकते हैं। Okay, and you will be giving a certificate and all those things which you have just या mentioned. करेक्ट मैम। Okay, got that, got that. Thank you. Thank you so much. It was really good. सेम ईयर मैम, थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you. सुनील जी, you can unmute and ask the question. Vaishnavi, OnePlus. Okay, then I think so that I am done for the evening. I'm thank you so much. आप शायद से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you so much everyone for attending this session, and
adding value to your life and helping yourself. So, this was all from my side. See you in the next webinar. Bye bye. Take care. Have a great evening.